So hello class, welcome to you guys on my channel Extreme Classes. So basically guys, in this lecture we'll learn about sum of n terms in AP. In our previous lecture we learned about an formula like an is equal to a plus n minus 1 into d and many more things. So in this lecture we start our topic from sum of n terms. So this is part 4 of AP arithmetic progression. In this part we learn about sum of n terms. The first thing which we need to understand it, and that is what is the meaning of sum of n terms. So in our previous lectures we know that if there is a 2, 4, 6, 8 and so on, so this is first position, second, third, fourth, and this will be also continue. So according to this formula, an is equal to a plus n minus 1 into d, we can find out at what position which value exist. मतलब कि इस फॉर्मूले के हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस पर कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल at the number of 4 there is a 8, so 5 there is a 10, so this will be continued, and at the number of 10 we can find 20. मतलब कि कंटिन्यू होगा, 4 पे 8 है, 5 पे 10 है, तो 10 पे 20 होगा. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम कैसे पढ़े थे? an के फॉर्मूला से पढ़े थे, विच इज नोन बाय an is equal to a plus n minus 1 into d. So now in this lecture we learn one another formula which is known by Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. मतलब कि इस लेक्चर में हम कौन से फॉर्मूला को पढ़ेंगे? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इस फॉर्मूले का देखो, समझो मतलब क्या है. अभी तक के फॉर्मूले हमें ये बता रहे थे कि पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है या पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी पोजीशन पे है, बट ये फॉर्मूला हमें ये बताएगा कि हमारे जितने भी पोजीशन हैं उन सभी पोजीशंस का सम कितना होगा. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 5 7 9 11 and this will be continue, so I can ask one question, what is the value of position 9? So position 9 is known by n is equal to 9. तो अगर हमें ये निकालना रहे कि 9 पे कौन सी वैल्यू है, so this can be find out with the formula an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is 5 plus 9 minus 1 into d means 2, so 5 plus 8 into 2 and 5 plus 16 is equal to 21. मतलब कि हमने an की वैल्यू कितनी निकाल दी है? 21 निकाल दी है. ये कैसे निकला है? an के फॉर्मूले से. मतलब n जो पोजीशन है, 9 जो पोजीशन है, इस पोजीशन पर कौन सी वैल्यू आएगी? 21 आएगी. an is equal to 21. बट अगर हमें ये फाइंड करना रहे कि ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, और ऐसे करते करते 9th पोजीशन पर 9th पोजीशन तक की वैल्यूज को अगर हमें ऐड करना है, भाई 9th पोजीशन की वैल्यू हुई 21, बट अब हमें क्या करना है? इस 9th पोजीशन तक की वैल्यूज को ऐड करना है. For adding all the values, all the terms, we need to use this formula which is known by Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. So how can we use this formula? This is also very easy. The same thing happen here. A is equal to 5, d is equal to 2, n is equal to 9, and okay, these are the enough numbers. So Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. So what we see, Sn means S9 is equal to 9 upon 2, 2a means 2 into a means 5 plus 9 minus 1 into d means 2. So 9 upon 2 in bracket 10 plus 8 into 2. So 9 upon 2 into 10, 8 to 16 or 16 plus 2, 10, 26. So 2 1 2, 2 3 6. Now 9 into 13 is our answer. It means
सम ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल टू 117। ऐसे करके हम शुरुआत के 9 नंबर को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 117 आएगा और 9वें नंबर पे क्या आएगा 21 आएगा। सो बस हम इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे एंड दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड होल द थिंग्स ऑफ दिस फॉर्मूला। बिकॉज फॉर्मूले के बिहाफ पे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं लगाते हैं तो फॉर्मूलाज को समझ पाना काफी इजी हो जाता है। फॉर्मूला यही रहेगा हमारा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। क्लियर? इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे हमें क्वेश्चंस को लगाना है, बट कैसे लगाना है, हाँ ये भी कभी कभी हमें इन फॉर्मूलेज के साथ साथ an के भी फॉर्मूले को भी यूज करना पड़ जाता है। लाइक an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सपोज करो आपको क्या हो कि कोई सीक्वेंस दे दिया गया हो AP का और उसमें पोजीशन भी ना पता हो, आपको 9th क्या आएगी, तो पहले आपको नाइन्थ पोजीशन फाइंड आउट करनी रहेगी एंड देन यू कैन ऐड ऑल द नंबर्स, ऑल द टर्म्स। सो लेट्स सी व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन से, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स। What is first question? Find the sum of first 24 terms of the AP 5, 8, 11, 14 and so on. So now we need to understand that what question exactly say. Clear? तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक टर्म है which is known by 5, 8, 11, 14 and this will be continued। इस टर्म में शुरुआत के 24 टर्म का हमें सम चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ, और ये करते करते चीजें कंटिन्यू होंगी। लास्ट में हमारा कौन सा पोजीशन आ जाएगा 24 टर्म आ जाएगा। तो हमें 1 से लेकर 24 टर्म की वैल्यूज को ऐड करना है। तो देखो n हमारे पास हो गया 24, a हो गया हमारे पास 5 और d हो गया हमारे पास 8 माइनस 5। तो 24 तक की वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3 एंड देन n इज इक्वल टू 24। So now what we see, Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Now what we see, n means 24 upon 2 in bracket 2 into 5 plus n minus 1 means 24 minus 1 into d का मतलब हो गया 3। 2 12 जा 24, ये 5 2 जा 10 प्लस 23 इंटू 3, 12, 3 3 9 एंड 3 2 6, तो 10 प्लस 69, now 12 into 79, 108, so we have a 10, 940, sum of 24 terms। तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने 24 टर्म्स का सम कितना निकाल लिया, 940 निकाल लिया। भाई हमारे पास क्या था, 5 8 11 14 पहले था, हमने a की वैल्यू 5 रखी और d की वैल्यू 8 माइनस 5 3 रखी और 9 की वैल्यू 24 है। 24 अपॉन 2 2a इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 24 अपॉन 2, a का मतलब हो गया 2 5 जा 10 एंड n माइनस 2 का मतलब हो गया 23 और d का मतलब हो गया 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 प्लस 79 और 12 9 जा 100, अच्छा सॉरी 12 इंटू 79 ना, तो 12 9 जा 108, तो 108 को 8 हो जाएगा और कैरी 10 हो जाएगा। 12 7 जा 84, 84 है 94, 948 होगा यहाँ पे। देयर इज अ वन सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक मुझे लगी थी, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन को दोबारा रीचेक किया ताकि कहीं भी कोई भी अगर इशू हो तो वो हमें पता चल जाए। टाइम कितना हो रहा है? फोन लाया जल्दी चलो ठीक है। अच्छा हाँ 8:20 हो रहा है अभी, चलो तो टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स whose nth term is this and find the first 20 terms।
Let's solve another question. What question say? Find the sum of first n term of an AP whose nth term is 5n minus 1, whose nth term is 5n minus 1, and then we need to find the sum of first 20 terms. So देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. ठीक है, ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, बट यहाँ पे वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स n टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth टर्म इज दिस. किसी एपी का nth टर्म कितना है? 5n minus 1 है. 5n minus 1 है. So find the sum of first 20 terms. तो देखो फर्स्ट 20 टर्म, पहले हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकालना कठिन नहीं है, बट हमें इस फर्स्ट 20 टर्म्स की वैल्यूज इस सीक्वेंस का जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म. इसका फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1. पहले टर्म में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. सो हमारे पास क्या हो जाएगा? a1 की वैल्यू या पहले पोजीशन की वैल्यू 5 into 1 minus 1 which is equal to 5 minus 1, and then we have a 4. ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास? a1 की हो गई. इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड टर्म, n is equal to 2, so 80 is equal to 5 into 2 minus 1, so 10 minus 1 which is equal to 9. ये किसकी वैल्यू हो गई? a2 की वैल्यू हो गई. अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म हो गया हमारा n इज इक्वल टू 3, सो a3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 1, सो 5 से जब 15 माइनस 1, तो 15 माइनस 1 का मतलब हो गया 14, a3. ठीक है, तो यानी कि a1 की वैल्यू हो गई 4, a2 की वैल्यू हो गई 9 और a3 की वैल्यू हो गई 14. ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे समझते हैं, हमारे पास जो सीक्वेंस बना है वो बना है 4, 9, 14 एंड so. अब ये हमें कहां तक ले जाना है? 20th टर्म तक ले जाना है. कहां तक ले जाना है? 20th टर्म तक. अब जैसे हमने फर्स्ट टर्म निकाला, सेकंड टर्म निकाला, थर्ड टर्म निकाला, वैसे ही 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सारे टर्म्स निकालेंगे. बट वो टर्म्स हमें नहीं निकाले, हमें उन टर्म्स का सम चाहिए. इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो ये चेक करते हैं सही है कि नहीं. 9 में से 4 गए, कितना बचा? 5. 14 में से 9 गया 5, यानी कि कॉमन डिफरेंसेस बराबर आ रहे हैं. तो ए हो गया हमारे पास 4, डी हो गया हमारे पास 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5, एंड एन हो गया हमारे पास 20. अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? सम ऑफ n टर्म्स, तो मतलब कि सम ऑफ 20 टर्म्स. n अपॉन 2 मीन्स भाई n अपॉन 2 का मतलब हो गया 20 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 इंटू d मीन्स 5. अब हो जाएगा 2 10 जा 20 ब्रैकेट 2 4 जा 8 प्लस 19 into 5, then what we have? 10 in bracket 8 plus 5 9 45, 5 9 5 plus 4 9. Clear? So we have a 10 into 103, and then sum of 20 term is equal to 1030. तो वो काफी इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है. ये टर्म मिला था, हमने 20 टर्म निकाला था, शुरुआत के 3 टर्म निकाले, उसको 20 टर्म तक ले गए, n की वैल्यू 20 रखा, a और d हमें यहां मिल गया, एंड देन वी आर एबल टू फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स व्हिच इज इक्वल टू 1030. सो इफ यू ट्राई टू कंप्लीट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन से how many terms of the AP this must be added to get the sum of this?
हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP 3, 5, 7, 9 must be added to get the sum 120. So what this question say, how many term of the AP 3579 must be added to get the sum 120. यानी कि हमारे पास एक AP का सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, ठीक है, और ये हमने कंटिन्यू कर दिया। अब इसमें हम मान लो सम ऑफ टर्म निकालते हैं तो ठीक है, समझ में आता है, हम सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स निकालें। बट हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड, इस टर्म में कितने और टर्म हम ऐड करेंगे कि सम हमारा 120 आ जाए। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कहने का, हमें ये नहीं पता है ये सीक्वेंस कहां से कहां तक जाएगा, बट इतना पता है कि सीक्वेंस वहीं तक का ले जाना है जहां तक का सम क्या आ जाए, 120 आ जाए। हमारे पास फॉर्मूला था Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 * d। अब हमारे पास यहां पे क्या है, Sn की वैल्यू 120, ये क्वेश्चन ने खुद क्या दिया, Sn कितना आना चाहिए, 120। अगर Sn 120 है तो a हो जाएगा हमारा 3 और d हो जाएगा हमारा 5 - 3 = 2। अब अगर हमें यहाँ पे n मिल जाए तो पता चल जाएगा कि उतना n टर्म ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। So now what we do, Sn is equal to n/2 in bracket 2a + n - 1 * d। अब Sn की वैल्यू है 120, n/2, 2a means 2 × 3 plus n - 1 * d means 2. So we have a 120 is equal to n/2, 3 × 2 = 6 plus 2n - 2. 120 is equal to n/2 in bracket 6 - 2, 4 plus 2n. Clear? Now 120 is equal to, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 4 और 2 में से n/2, यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, 2। अब हमने 2 जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर बचा 2 + n। भाई हमने यहाँ पे इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो हमारे पास अंदर क्या बच रहा है, 2 + n, बिकॉज 2 × 2 = 4 और 2 है 2n। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 120 इज इक्वल टू, इस 2 से 2 कट गया तो n इन ब्रैकेट 2 + n, यानी कि 120 इज इक्वल टू 2n + n²। अब इस 20 को इधर कर देंगे तो 2 तो हो जाए। सो नाउ व्हाट वी डू, we'll shift 120 is there, so the new term equation is n² plus 2n, and 120 जब इधर आएगा then it will be changed in a form of -120, अब is equals to 0 as usual. Now what we do, 120, so 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब हमें इन टर्म्स को आपस में ऐसा ऐड करके लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारा टर्म क्या आ जाए, 2n आ जाए। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 2 जा 8, नहीं 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10। यानी कि अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी हैव अ 10 एंड 3 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, ये हो गया 12। अब 12 में से 10 जाएगा तो 2n आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर n² plus 12n minus 10n minus 120 is equal to 0। अब इसके बाद हो जाएगा n हमने कॉमन ले लिया, n plus 12 minus 10 हमने कॉमन ले लिया तो n plus 12 is equal to 0, क्योंकि 10 and 10 और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 10 12 जा 120। अब हो जाएगा यहाँ पे n - 10 और यहाँ हो जाएगा n + 12 इज इक्वल टू 0। तो n - 10 इज इक्वल टू 0 और
n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हो गई 10 और n की वैल्यू हो गई -12। अब ये 10 और -12 हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। तो कभी भी टर्म्स हमारे माइनस में नहीं आ सकते हैं। टर्म्स आर नॉट इन नेगेटिव। व्हाट इज नेगेटिव? ठीक है, टर्म्स जो है हमारे नेगेटिव में नहीं होते हैं। इस वजह से जो हमारा नंबर ऑफ टर्म आया है, नंबर ऑफ टर्म्स फॉर मेकिंग 120 इज इक्वल्स टू 10। ये 10 जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब कि 10 इज अ नंबर ऑफ टर्म इन दिस मस्ट बी एडेड टू गेट सम ऑफ 120। मतलब कि 10 ऐसे टर्म है जिनको 10 नंबर को आपस में लेने से हमारा सम कितना आएगा? 120 आएगा। सो ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सम ऑफ एटम्स का फार्मूला बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार फार्मूला होता है। सो इफ यू ऑल हैव एनी इशू, एनी क्वेरी, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी through my given WhatsApp number, and okay, so all the best, good luck.